Hello students and welcome to your own channel Be Mathaholic. Today we are going to continue with operations on sets. As you all know, in my previous video I had started teaching you about operations on sets, and in that we have studied about union and intersection of sets. Now we will be continuing the remaining two parts, that is difference of sets and complement of sets. ये दो बातें हम पढ़ेंगे, ये दो types of sets हैं जो हम आज सीखेंगे. And another thing is we are also going to discuss some practice problems on union, intersection, subsets, Venn diagram, difference and complements of sets. तो अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं उन पर हम सारे कुछ practice problems हैं उनको discuss करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. ये पहला part जो कि है difference of sets. Now As you all know, what is the meaning of difference? सबको पता होगा कि difference का मतलब क्या होता है. Difference यानी हम use करते हैं symbol minus. ठीक है. So what we'll do, children, that let us consider two sets. Let A and B be two sets. So difference of sets, as you all know, is denoted by a minus sign. So difference हम इस तरह से लिखेंगे A minus B. It is given as x is such that this is a definition in set builder form. X belongs to A and x does not belongs to B. अब इसका मतलब क्या है हम अच्छे से अभी समझेंगे. A और B हमने दो ऐसे सेट्स मान लिए, तो A minus B का मतलब है all those elements which are in A but not in B. Means elements will belong to A but they will not belong to B, will come in A minus B. So let us quickly understand with an example. Let set A comprises of elements 1, 2, 5, 7 and 9, and set B comprises of elements 2, 5, 10, 11. Okay. Now as I said, the definition says ऐसे elements जो A में है पर B में नहीं है. तो कौन कौन से elements आएंगे बच्चों? हमको क्या करना है? इन जनरल यू कैन से दैट यू हैव टू ओमिट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन. जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा देते हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए 2 and 5 ये यहाँ पर है, 2 और 5 यहाँ पर भी है. तो हमको 2 और 5 एलिमेंट्स दोनों में हैं तो वो नहीं लेने हैं. और A माइनस B हम लिख रहे हैं तो A के बचे हुए एलिमेंट्स विल बी द आंसर. सो योर आंसर विल बी 1, 7 and 9. दिस विल बी योर आंसर. बट इफ आई से I want to write B minus A. अगर मुझे B minus A लेना होगा तो definition क्या बन जाएगी? X belongs to B and X does not belongs to A. उल्टी बात हो जाता है, ये change हो जाता है. So in the same example, if I have to find out what is B minus A, what will be my answer? Again I said B माइनस A में वो एलिमेंट्स देखोगे जो B में है पर A में नहीं है. तो हमने फिर देखा यहाँ पर 2 और 5 B में भी है, 2 और 5 A में भी है. तो B में क्या है जो नहीं है? 10 and 11. So your answer for this will be 10, 11. I hope you have understood with this. Okay. So ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो हटा देते हैं, और A माइनस B पूछा हो तो केवल A के एलिमेंट्स आएंगे, और B माइनस A पूछा हो तो केवल B के एलिमेंट्स आएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस विथ एन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द वेन डायग्राम. हम वेन डायग्राम में डिफरेंस ऑफ सेट्स को किस तरह से शो करेंगे, चलो देखते हैं. यहाँ पर एज यू कैन सी हियर देर आर टू डायग्राम्स विच आर डिपिक्टेड हियर. Can see this is one diagram, this is another Venn diagram. Now what does these two Venn diagrams show? So let's understand this. So I'm going to explain it to you with the first one. देखो ये first वाला जो diagram है, first वाले diagram में आप क्या देख रहे हो? There are two sets A and B. In general, I should say ये depict कर रहा है जो shaded part आप देख रहे हैं. This shaded part is depicting what? It is depicting A minus B. Means in general this is also known as only A. Please remember this. This is also called as only A. Only A. Why? Because when you are going to study word problems, जब application based problems आप देखेंगे उसमें अगर ये word only A आता है या only P आता है या only B आता है, that means it is A minus B or whatever the sets are given to you. उसमें only A depict करेगा जो purely A के elements हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर shaded diagram से. अगर मैं कहूँगी only B, इफ आई एम टू से ओनली बी, तो ओनली बी को मैं इस तरह से डिनोट करूंगी. ये वाला जो पार्ट है वो क्या शो करेगा? दिस विल शो
only B or in general B minus A. This is how you can locate through Venn diagram. Okay, now see the second one is also showing one more thing. Now as you all know, जैसे मैंने कहा ये B minus A मैंने यहाँ समझाया, it has been shown in this manner. Now what is this part which is in between? As we had studied earlier, this part is what is it is known as? This is known as intersection of two sets. This part is intersection. So this part which is shaded part, this part is A minus B. ये थोड़ा सा dark वाला है, इसको बोलेंगे A intersection B. And this the part which is shown here, the blank white part, this is B minus A. I hope it is clear through Venn diagram to every one of you that how are we supposed to show the respective difference of sets in through Venn diagrams. Now let's move to the other topic, which is complement of sets. Okay, now again here the depiction for complement remember is given as A complement. आप A के ऊपर डैश लगा सकते हैं, जो भी सेट्स आपके सामने हैं उनको हम इस तरह से पुट करेंगे, तो इसको हम A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं. कई बुक्स में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, छोटा C बना हुआ, विच ऑल्सो शोज इट इज शोइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. बट यूजुअली वी विल बी कंसिडरिंग a small dash which denotes the complement. So let's see what the definition of complement says. A complement is equal to X is such that X belongs to U. Now what is U? U है universal set and X does not belongs to A. तो complement में क्या है इसका मतलब? ऐसे elements जो universal set में है पर A में नहीं है वो एक complement में आ जाते हैं. Let us more clarify it by the example. Let U be the universal set comprises of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Simple example I am taking. And let A be any set which is showing elements 2, 5, 9, 6. Okay. Now what does A? As I said, the definition says ऐसे elements जो universal set में हैं पर A में नहीं है वो A complement में आएंगे. तो A complement क्या होता है? देखो 2, 5, 9, 6, तो यहाँ से 2, 5, 9 और 6 को हटा दीजिए, बचे हुए सारे एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे? A complement में. So I will be writing it as 1, 3, 4, 7, 8 and 10. So as you can see, you have understood I think, because जो मैंने कहा है वो क्या कह रहा है, इसका रिलेशन हम डिफरेंस से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दैट वी कैन डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस एज A complement is what? Elements which are in U but not in A. So the parallel definition also says that A complement is equal to U minus A. ऐसे एलिमेंट्स जो U में है पर A में नहीं है. तो देखो यहाँ पर तो U में है जो A में नहीं है, देख लीजिए आप 1, 3, 4, 7, 8, 9. और इन जनरल यू कैन से अदर देन A whatever elements are there in U that those will be in A complement. और इससे हम क्या कंक्लूजन पर निकलते हैं जरा देखिए. A और A complement का अगर मैं यूनियन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? It will be universal set. Union means combination of all the elements. So I can say with this that A union A complement will be equal to universal set. ये एक चीज आपने ध्यान से प्रॉपर्टी बना ली आप लोगों ने देखकर, दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा. Similarly, if I ask you what will be the intersection of those two sets, what will be the intersection of A and A complement? What do you see? What are the common elements in between? There are no common elements in between. So the answer is phi. So these are the two properties which you have learned from this, that union of two sets is universal set and intersection of two sets is a null set or phi. I hope आपको समझ में आ गया होगा. So this is denoting the complement of a set. अब देखते हैं हम next slide में कि complement of set Venn diagram में किस तरह से show होता है. चलो देखते हैं. Now this is the Venn diagram which I have shown it over here. Venn diagram representing complement of a set. देखिए यहाँ पर ये जो shaded part है ये universal set show करता है rectangle. Set A जो है ये दिखाया हुआ है white में. So other than A, whatever elements are there in U, those will be depicting a complement. तो this shaded part, gray part जो आपको दिख रहा है, this is a complement. I hope you have understood.
This is the depiction of through Venn diagram of complement of a set. Okay, so let's see what the next. Now there are some properties of complement, and of course those properties are very important because it will be used in some applications, and using some properties, the proofs of properties we are going to discuss, उनमें ये सारी properties use होंगी. तो चलो देखते हैं क्या क्या properties हैं. Let's see this one now. First one, let us see. Now this properties, some properties of complement of a set. Now the first one says it is complement law. Property and laws are same. Okay, so if I talk about the first law, which is complement laws, as I said, अभी हमने discuss किया था कि जब A और A complement का union करते हैं तो what do we get? We get a universal set. So this is one property. Another is when we find the intersection of two sets, we get a null set, which is phi. This we have already discussed just now. Now we come to the most important law, which is known as De Morgan's law. बच्चों ये बहुत important law है और इस पे questions आपको पूछे जाते हैं. So please remember this law. The proof of this law is not there, but we can prove by taking some examples, and of course we can prove this by understanding through Venn diagram. वो भी मैं आपको समझाऊंगी और example लेके भी हम इस law को समझेंगे. अब ये लॉ क्या कहता है ये आपको याद रखना है. इट सेज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन. मीन्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड द रिवर्स ऑफ दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, दिस प्रूफ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू राइट नाउ. Let's see what the third law says. Law of double complementation means a complement का complement will always be equal to A. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको, हमने अभी किया है. And law of empty set and universal set, it says phi complement हमेशा U रहेगा और U complement is always phi. Remember this. Now what I was talking about is double complementation. जैसे negative of negative is positive. Just like in the similar manner, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या मिलेगा? ए. कैसे? चलो देखते हैं. हमने पिछला एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें हम अभी देखते हैं दैट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए. कैसे होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, तो मुझे क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दूंगी मैं. यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हटा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2, 5, 9, 6 एलिमेंट्स मिलेंगे. मतलब क्या मिला मुझे? ए. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट. अब यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दिया तो बचा क्या? ए बचा, वही हमको मिलता है. सो आई होप इट इज क्लियर एवरी वन ऑफ यू. सो लेट्स सी व्हाट द अदर स्लाइड सेज. नाउ विल मूव studying about De Morgan's law. So and of course some practical problems we are going to discuss on union and intersection. ये सारी चीज़ें हम अभी इस स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बाद बच्चों हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स कंप्लीट हो जाता है. सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हमने क्या पढ़ा था. ऑपरेशंस ऑन सेट्स में मैं एक बार रिकॉल करा दूँ आप लोगों को. ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक. हमने पढ़ा है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ठीक है, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ये इतने टाइप्स हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पढ़े हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इनफैक्ट ये सारा ऑपरेशंस के बाद हमने ये इतने टाइप्स आपने पढ़ चुके हैं. तो ये सारा मैंने समझाया हुआ है. इन पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करते हैं. ये मैंने कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर दिस. स्टडिंग डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर. सो वी बिगिन विथ सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. चलो देखते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ये क्या कहना चाह रहे हैं. So let's start with A minus B. Let's start with this. If A and B are two sets, this is first question. If A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? Now all of you know subset का मतलब क्या होता है बच्चों. ऐसे elements जो A में है और
बी में भी हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी, ओके, ए के सारे एलिमेंट्स बी में अगर हो तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में होंगे तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर ए इज लेस देन बी होता है क्योंकि ए के एलिमेंट है बी में, तो बी बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू व्हाट? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल देख के हम बताते हैं। ए है आपका 1 2 और बी है आपका 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या हो गया बच्चों? ए यूनियन बी हो गया 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है? बी सेट के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू बी। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Let A equals to AB. They have given you the element in this question. B equals to ABC. Is A a subset of B? क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो A सबसेट ऑफ B होने के लिए क्या होना चाहिए? A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। देखो है क्या? A और B है, यहाँ A और B है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं yes, A is a subset of B. बिल्कुल है। Now what is A union B? Again the same question comes. अगर A यूनियन B, A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो A यूनियन B किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया। तो मैंने ऊपर एक अलग एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल हमने ले लिया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है? If R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? These questions, ये जो तीनों questions मैंने अभी discuss किए हैं, ये usually 1 या 2 marks के लिए पूछे जाते हैं, remember, exam में, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और ये थोड़ा सा concept based questions हैं। If R is a set of real numbers, now all of you know, सबको पता है real numbers की definition क्या है? Real numbers की definition कहती है all rational and irrational numbers are real numbers. सबको पता होना चाहिए all rational and irrational numbers are called real numbers. So अगर real numbers है और R real number है, उसमें से हमने irrational number हटा दिया तो हमें definitely क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा irrational number. तो irrational number को जब मैंने शुरुआत की थी तब बताया था it is denoted with the symbol T. So your answer will be, you can write the answer in this form also, that what is R minus Q? It is irrational number, or T. T is also denoting irrational number. I hope it is clear. So R minus Q denotes the difference of sets, elements which are in real number but which are not in rational number. So elements जो rational number हटा दे, real number में से irrational ही बचेंगे definitely. So answer is irrational number. I hope these questions have clarified your concept, and of course you have recalled what was being taught previously to you. सबका पहला पढ़ा हुआ आपने समझ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पर अब। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या है। चलो, ये आपका एक क्वेश्चन है पूरा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ A is 3 5 7 9 11, B is this, C is this and D। यहाँ पर 4 सेट्स दिए हुए हैं आपको। Find A intersection B. Now as you know, A intersection B means elements which are in A and B, common elements of A and B. तो common elements कौन से दिख रहे हैं बच्चों आपको? 7 9 11, 7 9 11. So A intersection B will be 7 9 and 11. Intersection means all the common elements. सेकंड देखते हैं। सेकंड है B इंटरसेक्शन C। दोनों का सेट्स को कंपेयर कीजिए आप और कॉमन एलिमेंट्स ढूंढिए। कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 11 13, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई कॉमन है ही नहीं। सो योर आंसर फॉर B इंटरसेक्शन C विल बी 11 13। नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड वन में आपको क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट 3 सेट्स टुगेदर। तो जब ऐसा आपको पूछा जाए, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं हो, तो please remember that all those elements you have to consider which are common in all the 3 together. मतलब तीनों में जो common elements होंगे वही आंसर होगा। अगर एक भी common नहीं है तो null set आंसर होगा। चलो देखते हैं A C D में common elements कौन से हैं। 3 5 7 9 11
11, 13, 15 और डी में है 15, 17। अब देखो यहाँ पर 11 तो ए और सी में कॉमन हो रहा है पर डी में नहीं है ना, और 15 सी और डी में है पर ए में नहीं है, और ए के कोई भी एलिमेंट्स डी में नहीं है। इसका मतलब ए, सी और डी तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट हमको नजर नहीं आ रहा है। A intersection C intersection D, there is no common element, so your answer will be a null set, right? Let's move to the fourth one. I hope you will be easily doing now all the sets of questions. तो A intersection C देखते हैं। A और C में common elements ढूंढिए आप। 11, 13, 15 तो 11 के अलावा कोई भी common element नहीं नजर आ रहा है, तो A intersection C क्या हो जाएगा? 13। अब 13 ये एक एलिमेंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। This is an example of singleton set. There is only one element which is, there is only one element which is common, तो ये 11 आएगा इसका आंसर। 11 एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो आपका आंसर आएगा 11। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन which says 4 and this is 5. So fifth one says what is B intersection D? तो B intersection D में कंपेयर कीजिए आप B and D. Let's see 7, 9, 11, 13, 15 and 17. Are there any elements you see which are common? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। आंसर है आपका नल सेट। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ब्रैकेट लग गया है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले ये पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम B यूनियन C निकालेंगे। सो लेट्स सी व्हाट एलिमेंट्स आर देयर इन B यूनियन C। B यूनियन C के एलिमेंट्स देखो क्या क्या हैं? 7, 9, 11, 13 एंड 15। सो 7, 9, 11, 13 एंड 15। इसको हम क्या करेंगे? A के साथ इंटरसेक्शन। A सेट आपका क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। Its intersection with 7, 9, 11, 13 and 15. Now see, 7 and 9 are here, 7 and 9 are also here, 11 is also here, 11 is also here. So these three elements are common in both the sets. So intersection of both these, answer will be 7, 9 and 11. This is the answer for A intersection B union C. Please remember, अगर ब्रैकेट जहाँ आता है वो ब्रैकेट पार्ट आप पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो अदर पार्ट सॉल्व करेंगे उसके साथ। सो आई होप आई एम क्लियर विद दीज एग्जाम्पल्स। सो वंस यू रिकॉल यूनियन इंटरसेक्शन यू विल बी इजीली डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। नाउ सी, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें वेन डायग्राम बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है किस तरह से वेन डायग्राम हमको बनाना है। तो वेन डायग्राम चलो हम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम आपको पता है कैसे होता है। हम फर्स्ट पार्ट लेंगे विच इज शोइंग A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो चलो एक रफ स्केच करते हैं, वेन डायग्राम सीखते हैं। ओके, सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल डिनोट करता है। अगर मैंने यहाँ पे दो सेट बना दिए, ओके, ये A है और ये B है। अब आप सबको पता है कि A यूनियन B क्या होता है। A यूनियन B इज ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन A एंड B, मतलब ये कॉमन पार्ट है। उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हटा दीजिए। सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। तो आप देखो ये वाला जो पार्ट है अदर देन A यूनियन B, ये जो मैंने शेड किया है अभी यहाँ पर, दिस शेडेड पार्ट विल बी डिनोटिंग व्हाट? It will be denoting A union B whole complement. All right, shaded part इन दोनों को हटा के जो बचा हुआ है वो complement में आ जाएगा। ओके, इसी तरह मैं पहले थर्ड वाला बताती हूँ आपको ताकि बाकी दो आप कोरिलेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड पार्ट विच इज A intersection B whole complement। ये क्या से बता रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे हमने दो सेट ले लिए A और ये है आपका B। ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ना A इंटरसेक्शन B, आपको पता है इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होता है, बीच का केवल ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन ये वाला है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को हटा दीजिए आप।
ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देते हैं। तो देखें जरा कौन सा पार्ट आता है बच्चों। So what do you see that I'll show it through some other color, you can see it over here। मैं आपको इससे बताती हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। दिस पार्ट वॉज शोइंग वॉट, इट वॉज शोइंग द इंटरसेक्शन पार्ट। ये हमको ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा था। अब ये जो ग्रीन लाइंस का पार्ट है, इस रेड पार्ट को छोड़ के जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं वो सारा पार्ट क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट इज यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इसको छोड़ के। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन। यहाँ पर ये रेड पार्ट जो है इसको हमने हटा दिया, ये वाला रेड पार्ट छोड़ के जो ग्रीन पार्ट है दैट विल बी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये पार्ट छोड़ के सारा पार्ट क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिपिक्ट करते हैं। कैसे डिपिक्ट करेंगे देखते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिपिक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और इनफैक्ट आई कैन टेक इट एज अनदर लाइन इफ यू कैन टेक। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग इट इन दिस मैनर। ये आपका इस तरह से मैंने शो कर दिया। सो एक रेक्टेंगल लेते हैं हम। Okay, and now we'll be showing this through a universal set, and this is A and this is set B। ये A और B सेट्स हैं दोनों। अब A कॉम्प्लीमेंट है, पहले हमको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो A कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरह से ग्रीन से ही शो करती हूँ। A कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर देन A को छोड़ के सारे पार्ट आएंगे। सेट ए वाला कोई भी ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ओके, ये मैंने इस तरह से शो कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं लूंगी क्या, अब हम दिखाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का पार्ट छोड़ के सारे। तो देखो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं मैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट क्या शो कर रहा है, बी का पार्ट नहीं आएगा, कोई भी बी का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ए में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर बी का पार्ट जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो गया पूरा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। रेड वाला पार्ट पूरा बी कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो बच्चों आप देख रहे होंगे इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट इज व्हाट, इट इज शोन बाय दिस चेक्स। एज यू कैन सी चेक्स जहां जहां दिख रहा है, ये और ये नहीं, जहां जहां चेक्स दिख रहा है दैट विल बी डिनोटिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन शो करेगा। सो दिस इज शोइंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किससे शो हो रहा है, आपका जो चेक्स वाला पार्ट है उससे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट से शो हो रहा है। सिमिलरली हम दूसरा भी देख सकते हैं तुरंत से। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये चलो हम देखते हैं इस वाले में क्या शो करेगा। Now as you can see, this part is showing A complement intersection B complement, that is equal to this, the checks part जो आपको दिख रहा है checks में red और green में, that will be the complement of this. Now let's start with the next part which is A complement union B complement. इसको देखते हैं हम A complement union B complement को किस तरह से शो करेंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। Let us take two sets again here, A and B। ये A और B है। अब A कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले A का जो कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर देन A हम क्या ले लेंगे, सारे पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसी तरह हम A को छोड़ के सारे पार्ट को शेड कर देंगे विच इज शोइंग द कॉम्प्लीमेंट पार्ट। ये A को छोड़ के हमने सारा शेड कर दिया। अब आते हैं B कॉम्प्लीमेंट पर। तो B कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं दूसरा कलर रेड ले लेती हूँ। यहाँ से हम B का कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़ के सारे पार्ट को हम फिर से शेड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने B को छोड़ के सारे पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। ये देखो इस तरह से शेड कर दिया। ओके, नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस अगेन,
नाउ यूनियन, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स विच आर इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट और बोथ। तो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स आपको स्ट्राइप्स दिख रहे हैं ये और ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ये भी इसमें आ जाएंगे। मतलब ये जो है ये सारे एलिमेंट्स, केवल ये पार्ट नहीं आएगा, इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एज यू कैन सी। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो यहां पर आप को रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जस्ट सी राइट हैंड साइड में देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, सारा पार्ट, केवल ये व्हाइट पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट क्या शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। ये देखो ये मैंने बनाया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें रेड पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए, यस बिल्कुल इक्वल हुए। तो वेन डायग्राम से इजीली आप डिपिक्ट कर सकते हैं किसी भी सेट के नोटेशंस को और फॉर्म्स को। सिमिलरली आप इन दोनों को भी कंपेयर करके देख लीजिए, ये दोनों भी है। इट्स ये वाला पार्ट क्या होता है, वेन डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी हाउ इट इज इक्वल, अगेन यू कैन सी हियर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट आ रहा है, जो केवल चेक्स वाला पार्ट है। देखिए चेक्स वाला पार्ट केवल, ये दोनों नहीं। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ये जो शेडेड पार्ट मैंने कहा है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहेगा, रेड वाला पार्ट हमने हटा दिया, इसको छोड़ के सारा पार्ट। अब देखो ये दोनों पार्ट छोड़ के चेक्स वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, वो इससे मैच हो रहा है ग्रीन स्ट्राइप से। सो यू कैन सी दिस लॉ इज वेरीफाइड, दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया एक तरह से, किससे हो गया डी मॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन, थ्रू वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम से वेरिफिकेशन पूछा जाएगा तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। अब इसी डी मॉर्गन लॉ को हम कोई एग्जाम्पल लेके कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही समझाया है, चलो देखते हैं। लेट्स सी नाउ दीज आर बोथ द लॉज ऑफ डी मॉर्गन्स। सो ये हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो व्हाट इज बीइंग गिवन हियर, सी यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक कोई सेट ए दे रखा है एंड सेट बी इज गिवन। नाउ वी हैव टू वेरीफाई बोथ दीज। सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज वेरीफाइंग। मैं आपको फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करके बताती हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट विच इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट्स टेक द LHS पार्ट। LHS हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, A union B whole complement. Okay, now you know what you say, it is universal set minus A union B। हम डेफिनेशन जानते हैं कॉम्प्लीमेंट की, U माइनस A यूनियन B। अब उसके लिए हमको A यूनियन B लेना पड़ेगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से हमको ए यूनियन बी को नहीं लेना है, तो ए यूनियन बी कौन कौन से एलिमेंट्स देखो, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यू कैन सी ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी बोथ, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है। तो दिस इज ए यूनियन बी। इन दोनों में से हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों का इंटरसेक्शन होंगे, वो हटा देंगे, बचे हुए ले लेंगे। सो आप कॉमन एलिमेंट देख लो, 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी है इसमें भी है, हटा दीजिए तो ए 1 और 9 बचेगा। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या आएगा आपका, 1,9। ये हो गया आपका LHS। अब RHS में आते हैं हम। RHS में आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस ए, इंटरसेक्शन U माइनस बी, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज U माइनस ए, ऐसे एलिमेंट्स जो A में है और U में है वो दोनों को हम हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 और 8 को हटा के क्या बचता है, 1 3 5 7 एंड 9। सो द एलिमेंट्स आर 1 3 5 7 एंड 9। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। अब U माइनस बी, वो एलिमेंट्स लो 2 3 5 7 इसमें से हटा देते हैं, तो क्या बचा, 1 4
6, 8 and 9. So 1, 4, 6, 8 and 9. ओके अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स होता है बच्चों, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कौन कौन से हुए देखो 1 और 9 है, यहाँ पर भी 1 और 9 है, और कोई कॉमन ही नहीं है। 3, 5, 7 है, यहाँ 4, 6, 8 है, ये ऑड है, ये इवन है। सो द आंसर विल बी 1, 9। एज यू कैन सी इट हियर कि LHS और RHS दोनों सेम है कि नहीं। सो विद दिस एग्जाम्पल यू कैन इजीली से that LHS is equal to RHS, hence the De Morgan's law is verified. I hope I'm clear. So for this you should have a sound knowledge of union and intersection और difference इन सब का और complement का इनफैक्ट। तो जो हमने अभी तक जितने भी operations on sets पढ़े हैं, I hope it is clear कि आपको सबका knowledge होना बहुत ज़रूरी है, so that you can easily verify the De Morgan's law through Venn diagram as well as through examples. I hope I'm clear with all this and we are done with operations on sets. तो chapter 1 के जितने भी हैं मेरे previous videos आप देखिए, उनमें पूरा chapter 1 हम समझ चुके हैं। Now what is left is practical problems, application problems बची हैं, तो मेरे next video में हम application based problems और practical problems discuss करेंगे। So for that time I think you keep watching my Beam Mathaholic channel and subscribe to this channel and put your comments in the comment box so that I can have a scope of improvement, and any queries please put on the comment box. So thank you so much and bye for now. Thank you.